देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी का आदाब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जामिया हमदर्द कैंपस में बहुत ही अहम ख़वातीन एनजीओ की एक कॉन्क्लेव हो रही है। कल उसका पहला दिन था, आज उसका दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर के बाद ये कॉन्क्लेव मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इस दरमियान हमने कोशिश की कि जो 40 एनजीओ देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आए हुए हैं उनसे मुलाकात की जाए, उनके जो नुमाइंदे यहाँ आए हुए हैं उनसे बात की जाए। और मैं इनसे बात करूँगा। ये तीनों केरला से आते हैं और अलग अलग एनजीओज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ। मेरा नाम रजीना बेगम, मैं एम जनरल सेक्रेटरी विंग्स। इट्स ए मुस्लिम प्रोफेशनल वुमेंस एनजीओ है केरला के। केरला में के स्टेट लेवल बॉडी है वो। आउट ऑफ 14 डिस्ट्रिक्ट 9 चैप्टर्स भी है डिस्ट्रिक्ट में। And we are working in different, all the professionals are gathered under wings. Lawyers are there, advocate, this professional, economic, CA, then doctors, counselors, psychologists, engineers, many variety of professionals are there. So we are categorizing them in different cells and we are working for the women and especially women and children, all type, irrespective of the caste, creed and everything, we are working for them. Thank you. आपका नाम क्या है? Your good name? My name is सफ़िया खान। मैं बेसिकली एडवोकेट हूँ और अभी यहाँ मैं आवर इंडिया फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं विंग्स का भी एक स्टेट एक्सिक्यूटिव मेंबर हूँ और फ्रेंड्स फोरम का भी उसका स्टेट लीगल सेल कोऑर्डिनेटर भी है। आवर इंडिया फाउंडेशन का कोऑर्डिनेटर भी है। और आवर इंडिया फाउंडेशन कैलिकट बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मेन काम करता है। नॉर्थ इंडिया में काम हाँ हाँ, यूपी में शामली डिस्ट्रिक्ट में कांडला में आवर इंडिया फाउंडेशन एक वी हैव अ स्कूल देयर। इट्स बीन स्टार्टेड more than 10 years before, and we work with underprivileged and riot affected. We give education to children, underprivileged children there, and also riot affected children. And we also work on full development on the community in that village. Made a difference in people's lives. आपका नाम क्या है? आप इधर आ जाइए। My name is Fatima. I am representing Friends Forum, a women NGO based in Ernakulam. We are focusing on the empowerment of women, mainly on education and skill development. We gave them emotional and mental support mainly to bring out their full potential. 2 दिन से इस कॉन्क्लेव में, लीडरशिप कॉन्क्लेव को कवर में आप आई हुई हैं, आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो कॉन्क्लेव है कितना अहम है एनजीओज़ के लिए, ख़ास तौर से वुमेन एनजीओज़ के लिए? Actually, the sessions and discussions are going on here help us to face the challenges and needs of the NGOs we are working for. And the fundraising ideas shared here give us a clear roadmap for our future endeavors. इसका 2 दिन से अब तक का जो आपकी लर्निंग रही है, तो आपका लर्निंग आउटकम आपको क्या लगता है? मुझे बहुत न्यू आइडियाज़ मिला और क्योंकि हमें and we could collaborate more, we could get to know more NGOs who were participating, and we could take ideas from them also, and from this session also we could get many things which we didn't know. आपका 2 दिन का जो टेक अवे है, क्या चीज़ें ले जाकर आप उन्हें बताएंगी? वो जो आप उन्हें बताएंगी आप हमें बताइए। Actually, as she told, we are getting many things. How we can improve our working, how we can improve how we can build our team very nicely, how we can operate in the this micro level, in the ground level, how we can work efficiently, and which all records or which are the accounting, which are the fundraising. These many things which we can, and how we can collaborate with the new things. We are getting new ideas. Actually, in Wings we are having different types of professionals are there. So how we can cater there? We are trying to raise them up. Okay, there we are keeping them their potential. Along with we have to empower them. Along with their potential to use to empower the society also. So आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि ये तीनों केरला से हैं। ज़ाहिर सी बात है, इनकी मलयालम पहली लैंग्वेज है, अंग्रेज़ी इनकी दूसरी लैंग्वेज है और हमारी हिंदी पहली लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा बैरियर ज़रूर था, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं था कि आपके समझ में ना आए। हम इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ के और यहाँ 2 दिन से जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या इनकी लर्निंग है,
और क्या लेकर यहाँ से जा रहे हैं और क्या हमें इनसे सीखने की ज़रूरत है। ये हमारी कोशिश थी कि इस लीडरशिप का जो प्रोग्राम वहाँ पर हुआ है कॉन्क्लेव, उससे हम आप तक कुछ चीज़ें पहुँचा पाएँ। बहुत शुक्रिया।